Hello, welcome back to my accounting class channel, The Master World. The topic of today's class is generally accepted accounting principles. The meaning of generally accepted accounting principles we have discussed in the previous class. Now, in this class, we are going to learn the features of accounting principles. Principles are those rules, regulations, instructions, guidelines which are made on the basis of some experiences by a human being. Some principles we can say are of science, but when we are talking about the principles of science, these are rigid in nature because these are fundamental truths. They are based on the nature and they are not changed. But many principles in other fields, many fields are generated by the man. Then we can say these are the man-made. So that some function can be done smoothly accordingly. So first feature of the accounting principle, man-made. Man-made. These principles are the best suggestion to do any accounting practice, we can say, to give the treatment to any transactions, or to give any accounting treatment to any accounting term. Suggestion, best possible suggestion based on the practical experiences. Experiences many accountants or accounting bodies continuously have been doing the accounting practices. When they do accounting, they observe many things. There may be some pros and cons, means merits and demerits, may problems, situations. In different situations, what type of accounting treatment should be given, they give and make it as guideline. बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अकाउंटेंट्स और अकाउंटिंग बॉडीज प्रैक्टिसेस कर रही होती हैं, और जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग टर्म का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो उस ट्रीटमेंट को देती हैं और कहलाता है आपका सजेशन, बेस्ट पॉसिबल सजेशन इन द ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर. तो मैन मेड होते हैं ये प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. Flexible means not rigid. Not rigid means can be changed. Rigid होता है fixed. Not rigid, that is not fixed. जो fix ना हो उसे कहते हैं flexible. Means increase, decrease, modification. तो that is called flexible. Means accounting principles can be modified, can be changed according to the situation. In any situation when the accountants think that this principle should be modified or this transaction should be given the treatment like this. So these principles can be modified, but some points are kept in the mind. These are these points. We will discuss after this. Not rigid means प्रिंसिपल जो होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. जब हमारे अकाउंटेंट्स या कोई भी हमारी अकाउंटिंग बॉडी, कोई इंस्टीट्यूट, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, उसको लगता है कि अब इसमें कोई वीकनेस आती है किसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, और उनको लगता है कि नहीं, अब इसका ये सजेशन होना चाहिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दूसरा होना चाहिए, तो वो फॉलो किया जाता है. या कोई स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो चेंज हो सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दे कैन बी चेंज. बट व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड, दीज आर द points. Relevance, objective and feasibility means जब आप इसकी नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं तो लिखते हैं जनरली एक्सेप्टेड, कि आपकी ये जो प्रिंसिपल्स है ना जनरली एक्सेप्ट कर लें लोग. जनरली अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट्स हैं हमारे वो एक्सेप्ट कर लें, और कंपनीज और बिजनेस यूनिट्स एक्सेप्ट कर लें उन मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को. और वो कोई भी एक्सेप्ट कब करेगा, ये डिपेंड करता है कि ये फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट कर जाए. Depends on how it meets the following criteria. कि जनरली एक्सेप्ट कब होंगे, जब ये क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से. फर्स्ट क्राइटेरिया रिलेवेंस. रिलेवेंस मीन्स all the related informations, necessary informations must be disclosed by the accounting or account statements or books of accounts etc. Such type of practice should be adopted. जो हमारी अकाउंट्स हैं
या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, उनसे जो भी रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो जानी चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल्स हम बनाएं। यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आनी चाहिए। एंड व्हाट आर द यूजफुल इंफॉर्मेशंस? वी हैव डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस क्लासेस। प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एटसेट्रा, मैनी। तो रिलेवेंस होनी चाहिए तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि किसी को भी एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है, रिलेवेंस होगा तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, तो जनरली एक्सेप्टेड हो जाएंगे प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। यदि जिस पर्पस के लिए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो इन अकाउंट्स को प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बियास, कि आप पर्सनल बियास पर नहीं फॉलो कर रहे हैं कोई प्रैक्टिस, प्रिंसिपल्स आपने पर्सनल बियास पर नहीं बनाए हैं, कॉमन व्यूज देखे हैं, कॉमन थिंकिंग ली है, और आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं अकाउंट्स के, वो पर्सनल ब्याज पर नहीं कॉमन ब्याज पर होते हैं, या कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बेस पर ही होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं उसके बेस पर होते हैं। तो आपके वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए। फिजिबल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिबल, देयर इज अ स्टडी, फिजिबल स्टडी, कि इट शुड बी पॉसिबल और नॉट, इट कैन बी अप्लाइड और नॉट। तो हम जब फिजिबिलिटी बात करते हैं तो अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोई अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मींस आप ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करें जो इजी हो, सबको समझ में आ जाए। ये नहीं है कि पहले इजी चल रही थी और आपने टफ प्रैक्टिस शुरू कर दी है, या ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दी जिससे अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो आप कह सकते हैं फिजिबल applied without undue complexity and cost, means such types of principles should be there that are not complex or that are simpler than the previous one and are not increasing the unnecessary cost. Next, necessity, this is the next topic, कि क्या जरूरत है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, what is the need of preparing and following the accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए हैं क्योंकि जनरली एक्सेप्ट लोगों को करना है, द अकाउंटेंट्स शुड प्रिपेयर द अकाउंट्स यूनिफॉर्मिटी, मींस सिमिलर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन अ स्कूल all the students come in a uniform, so that there should be a uniformity, there should not be triangle or the symbol of status with the different types of colors, dresses, फैशनिज्म, नथिंग शुड बी देयर। यूनिफॉर्मिटी एक सा नजर आना चाहिए सबको कि हाँ ये इसी तरीके का। तो यूनिफॉर्मिटी होती है जब आएगी अकाउंट्स में, एक जैसे अकाउंट्स होंगे तो उनको चेक करने में आसानी आएगी, आइडेंटिफिकेशन में आसानी आएगी कि हाँ ये अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गया कि ठीक है किस नेचर का है, क्या ट्रीटमेंट किया है, और उसको कोई भी अकाउंटेंट इजीली चेक कर सकता है। कोई भी अकाउंटेंट, यदि किसी ने अकाउंट्स बनाए हैं तो दूसरा कोई अकाउंटेंट चेक कर सकते हैं। चेक मींस ऑडिटिंग में आसानी रह जाती है यदि यूनिफॉर्मिटी उसमें है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कोई भी उसको इजीली समझ लेगा क्योंकि वो कॉमन है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो सभी उसको फॉलो कर रहे हैं तो इजीली सभी उसको समझ भी लेंगे। और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। मीनिंगफुल जैसे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या कैश फ्लो पोजीशन है, क्या फंड्स फ्लो पोजीशन है, ये सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस निकल कर आती हैं। इसीलिए आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ताकि सबके एक जैसे हों, मीनिंगफुल हों, अंडरस्टैंड किए जा सके इजीली, और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी आप फॉलो करते हैं। तो जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली fulfill हो जाती हैं। I hope that you have got this topic. If you have any doubt, you can leave a comment or can give me the WhatsApp reply. Next video will be made accordingly so that I can sort out your all doubts. If this video is meaningful for you or you can say beneficial for you, then give a thumbs up and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.